Hello everyone, so this is Rakshita from Lifeline Success. So today we are going to start from class 9, chapter number 5, that is Pastoralist in the Modern World. This is the part 2 of this chapter. So part 1 I have already uploaded on my channel. So if you can, before watching this part 2, you can watch the part 1. So here in this chapter we have studied about different communities. So like first in the mountains we have studies about Gujar Bakarwals of Jammu and Kashmir. Then we have studies of Gaddi Shepherds which are of Himachal Pradesh, and Gaddi Shepherds and Bakarwals their seasonal moment have very similarities. And next we have studies Gharwal and Kumaon. After that, these were of the mountains and the communities that belongs to plateaus, plains, and desert. That the first is of Dhangars, which belong to the Maharashtra, and next is the Golas and Kurumas and Kurubas, which are of Karnataka and Andhra Pradesh. Then we have studies about Banjaras, which is very common name, and these belongs to many parts like Maharashtra, Punjab, Haryana, Rajasthan, Madhya Pradesh, and Uttar Pradesh. And lastly, we have studied about the Raikas community, which is of Rajasthan. Only this much communities we have studied, and after that I have told you about the colonial rule and the pastoral life, that how that what happened when the colonial rules, what were the effects. First I told you about the Forest Act. Secondly, wasteland rules. Third and fourth. Third was a Criminal Tribes Act. And fourth was the grazing tax. So these all were the, what were these? These were the rules and laws which were had been imposed on the pastoral communities. First was Forest Act, second wasteland rules, third Criminal Tribes Act, and fourth was grazing tax. So this we have studied, and after that we have studied that how did the changes affect the lives of pastoralists. So how they have faced these challenges, how did they cope with these changes, what they have done for living their livelihood. Then these were these which four laws and rules which I told you, that were of India, that were imposed in India when there were colonial rule. Colonial rule. So now I will tell you that what happened in Africa. The same thing happened in Africa which was very similar to India. So let's study that how pastoralism affect in the Africa. So let's start. So let us move to Africa, where over half of the world's pastoral population lives. सो चल अभी अफ्रीका में देखते हैं कि उसमें मतलब अफ्रीका की जितनी पॉपुलेशन थी उसमें आधे से ज़्यादा पॉपुलेशन, हाफ प्लस पॉपुलेशन किसमें बिजी थी? इन द pastoralism. Even today over 22 million Africans depend some form of pastoral activity. आज भी 22 मिलियन लोग हैं वो भी pastoral community से कहीं ना कहीं relate करते हैं. They include communities like Bedouins, Berbers, Masi, Somali, Boran and तुर्काना. तो मतलब अब ये जैसे इंडिया की कम्युनिटीज बताई थी, राइकाज और कौन सी थी? गुज्जर बकरवाल्स, गड्डी शेफर्ड्स, कुरुबास, कुरुमास, गोलास, धंगर्स. तो जैसे वो इंडिया की कम्युनिटी थी, वैसे ये अफ्रीका की कम्युनिटी है. बिडोन्स, बर्बर्स, मासी, सोमाली, बोरन एंड तुर्काना.
So most of them now live in the semi-arid grasslands or arid deserts where rainfall agriculture is difficult. मतलब अभी अफ्रीका के जो लोग हैं मतलब वो ऐसी ग्रासलैंड ऐसी जगह रहते हैं ऐसी ग्रासलैंड पे रहते हैं जहाँ पे वहाँ की ग्रासलैंड बहुत सेमी एरिड मतलब बहुत ज़्यादा डेजर्ट टाइप एरिया। अब डेजर्ट टाइप मतलब एकदम सूखा एरिया है। अब सूखा एरिया तो मतलब वहाँ पे रेनफॉल बहुत कम होगी और एग्रीकल्चर तो मुश्किल से कहीं देखने के लिए मिलेगा हमें। दे रेज कैटल्स कैमल्स गोट्स शिप्स एंड डोंकीज एंड दे सेल मिल्क मीट एनिमल स्किन एंड वूल। मतलब वो वहाँ पे कैटल कैमल्स गोट शिप्स ऐसी कम्युनिटीज़ मतलब ऐसे एनिमल्स लेके वहाँ की कम्युनिटीज़ घूमती है और फिर इनसे क्या क्या मिलता है मिल्क मीट एनिमल की स्किन जो बेचते हैं बाजार में जो लाखों की करोड़ों की बिकती है उनकी स्किन और वूल। तो ये सब क्या है ये सब मतलब एनिमल्स से उनको मिलता है और ये लोग जाके बेच देते हैं एंड अर्न थ्रू ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट। और ये तो सिर्फ ये एनिमल्स को रियर करते पालते उनको उनसे मिलता है तो फिर ट्रेड भी करते हैं और ट्रांसपोर्ट भी करते हैं। अदर्स combine pastoral community with agriculture. Still others to a variety of add jobs to supplement their meager and uncertain earnings from pastoralism. अब pastoralism से उनका क्या है उनकी लाइवलीहुड नहीं चल पाती तो इससे वो ट्रेड ट्रांसपोर्ट और दूसरी और छोटी छोटी जॉब्स हैं जो रिलेटेड टू पेस्टोरल एक्टिविटी है तो वो भी करते जिससे वो अपना जो है लाइवलीहुड चला पाए। सो लाइक पेस्टोरलिस्ट इन इंडिया जैसे इंडिया में पेस्टोरलिस्ट थे कैसे द लाइव्स ऑफ अफ्रीकन पेस्टोरलिस्ट हैव चेंज्ड ड्रामेटिकली ओवर द कॉलोनियल एंड पोस्ट कॉलोनियल पीरियड्स। व्हाट हैव दीज चेंजेस मीन जैसे इंडिया में कैसे मतलब कितना इफेक्ट पड़ा था जब कॉलोनियल ने रूल किया था जब ब्रिटिश ने रूल किया था ऐसा सेम अफ्रीका में हुआ। अफ्रीका में भी किसने रूल किया था ब्रिटिश ने उधर भी कॉलोनियल रूल था। अब वहाँ पे क्या क्या चेंजेस पड़े चेंजेस उन्होंने इम्प्लीमेंट किए वो देखते हैं। Now, mm, now here we will discuss some of the changes by looking at one pastoral community. अब यहाँ पे एक pastoral community है उसको पढ़ के उसके डिटेल में पढ़ेंगे और वहाँ पे क्या क्या changes है उसी से हम पता करेंगे। So वो community है मसाई community. So ये बहुत important community भी है यहाँ पे। Maasai community. Then after that in some detail the Maasai cattle herders live primarily in East Africa. अब Maasai community के लोग कहाँ पे रहते थे अफ्रीका के ईस्ट साइड में 3 लाख इन southern Kenya and another 1,50,000 in Tanzania. तो ये यहाँ पे एक साइड केनिया के लोग मतलब मसाई कम्युनिटी एक साइड केनिया है और एक साइड मसाई लैंड है तो मतलब ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है तो यहाँ पे कितने लोग रहते हैं 3 लाख लोग और यहाँ पे 1,50,000 लोग तो ज़्यादा कहाँ पे केनिया में हुए। देन वी विल सी हाउ न्यू लॉज एंड रेगुलेशन टुक अवे देयर लैंड। अभी हम देखेंगे कि नए लॉज और नए जो रूल्स थे उनकी वजह से उनकी लैंड कैसे उनसे छीन ली गई कैसे उनकी मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया। दिस अफेक्टेड देयर लाइव्स इन टाइम्स ऑफ ड्रॉट एंड इवन रिशेप देयर सोशल रिलेशनशिप। मतलब इसकी वजह से जो ड्रॉट मतलब जब सूखा पड़ता है तो उधर भी क्या है बहुत ज़्यादा उनकी लाइफ को इफेक्ट हुआ। देन नेक्स्ट है अभी हम यहाँ पे मतलब डिटेल में पढ़ेंगे वेयर हैव द ग्रेजिंग लैंड्स गॉन। अभी ग्रेजिंग लैंड गए तो छीन लिया उनसे अभी गए तो गए कहाँ। वन ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ द मसाई हैव फेस्ड इज द कंटिन्यूस लॉस ऑफ द ग्रेजिंग लैंड। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मसाई कम्युनिटी फेस की है वो कौन सी है कि वो लगातार धीरे धीरे वो अपनी लैंड को खोते गए। अब धीरे धीरे अपनी पूरी लैंड को उन्होंने खो दी। बिफोर colonial times Maasai land stretched over a vast area from North Kenya to the steppes of North Tanzania। मतलब कॉलोनियल रूल के पहले मतलब ब्रिटिश के आने से पहले जो मसाई लैंड थी उसकी जो लैंड थी ग्रेजिंग लैंड वो बहुत ज़्यादा बड़ी थी। नॉर्थ केनिया स्टार्ट होती थी और तंजानिया तक ख़त्म होती थी। सोचो फिर कितनी ज़्यादा बड़ी होगी। इन द लेट 19th century यूरोपियन imperial powers scrambled for territorial positions in Africa, slicing up the regions into different colonies। अभी इतनी बड़ी जो थी तो 19th century में क्या हुआ जो यूरोपियन imperial powers मतलब जो यूरोप के जो लोग थे यूरोपियन जो ऑफिशियल्स थे वहाँ पे तो उन्होंने क्या टेरिटोरियल पोजीशंस लिया था अफ्रीका में। इसलिए उनको दो पार्ट मतलब इतनी जो बड़ी थी इतनी वास्ट एरिया में उनकी ग्रेजिंग लैंड फैली हुई थी तो इसलिए उनको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। तो
यहाँ पे वही बताया गया है 1885 इन 1885 मसाई लैंड वॉज कट इनटू हाफ विद एन इंटरनेशनल बाउंड्री बिटवीन ब्रिटिश केनिया, एक ब्रिटिश केनिया और एक जर्मन तंगानिका। और दूसरी, सब्सिक्वेंटली द बेस्ट ग्रेजिंग लैंड्स वर ग्रेजुअली टेकन ओवर वाइट सेटलमेंट। अब सबसे अच्छा ग्रेजिंग लैंड तो उनसे ले ली, और वो ग्रेजिंग लैंड आप फिर किसको दी? वाइट सेटलमेंट को दी, मतलब जो गोरे लोग होते हैं। जैसे हमने पढ़ा भी था कि जो गोरे लोग होते हैं मतलब, और जो काले लोग होते हैं मतलब जो जिनका सांवला रंग होता है, ठीक है, तो उनके बीच में क्या है, डिफ्रेंशिएट होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता था अफ्रीका में, जो जिसके खिलाफ नेल्सन मंडेला ने आवाज़ भी उठाई थी। बट हमारे वो टॉपिक नहीं फिलहाल यहाँ पे। हम मतलब हमारे ग्रेजिंग लैंड बात करते, तो ग्रेजिंग लैंड वाइट सेटलमेंट को दे दी थी। एंड द मसाई वर पुश्ड इनटू अ स्मॉल एरिया इन साउथ केनिया। और जो मतलब मसाई के लोग हैं उनको साउथ केनिया में भेज दिया। एंड द मसाई लॉस्ट अबाउट 60% ऑफ द प्री कॉलोनियल लैंड। और उनकी जो लैंड थी जैसे मैंने बताया लॉस्ट होती गई, तो 60% तो उन्होंने ऑलरेडी लॉस्ट कर दी थी। दे वर कन्फाइंड टू एन एरिड जोन विद एन अनसर्टेन रेनफॉल एंड पुअर पास्चर। उनको एक ऐसी जगह भेज दिया गया था जहाँ पे बहुत ज़्यादा सूखा है। जहाँ अगर सूखा है तो देखो वहाँ पे मतलब बारिश नहीं होती, बारिश नहीं होती तो मतलब पास्चर भी अच्छे नहीं मिलेंगे वहाँ पे आपको। नेक्स्ट है, फ्रॉम द लेट 19th century the British colonial government in East Africa also encouraged local peasant communities to expand cultivation। अभी यहाँ पे क्या हुआ, जो 19th सेंचुरी में क्या हुआ, जो ब्रिटिश की जो गवर्नमेंट थी अफ्रीका में, ठीक है, तो उसने इनकरेज किया था पीजेंट को कि अपना मतलब देखो अभी पैस्चर लैंड उनसे ली जा रही थी, तो उनको मतलब अफ्रीका के लोगों को, अफ्रीका के पीजेंट्स को, फार्मर्स को मौका मिला था कि वो अपना कल्टिवेशन जो है उसको एक्सपैंड कर लें। एज कल्टिवेशन एक्सपैंडेड पैस्चर लैंड वर टर्न्ड इनटू कल्टिवेटेड फील्ड। जैसे जैसे उनका कल्टिवेशन एक्सपैंड हुआ वैसे वैसे जो पैस्चर लैंड थी वो कल्टिवेटेड फील्ड्स में बदलती गई। इन प्री colonial times, Maasai pastoralists had dominated their agricultural neighbors both economically and politically. By the end of colonial rule, the situation had reversed. अभी ये colonial rule के आते आते क्या है, जो सिचुएशन थी पूरी पलट गई थी। अभी हुआ क्या था, लार्ज एरियाज ऑफ ग्रेजिंग लैंड्स वर आल्सो टर्न इनटू गेम रिजर्व्स। जो बहुत बड़े बड़े ग्रेजिंग लैंड्स थे तो वो गेम रिजर्व में, ऐसे नहीं गेम खेलता यहाँ पे, नहीं, गेम रिजर्व यानी जैसे नेशनल पार्क्स होते हैं जहाँ पे एनिमल्स को रखा जाता है। जैसे मसाई मारा, संबुरु नेशनल पार्क केनिया में थे दोनों, फिर सेरेंगेटी पार्क तंजानिया में थे। ऐसे ऐसे बड़े बड़े गेम रिजर्व्स खोले थे। पैस्टरलिस्ट वर नॉट अलाउड टू एंटर दीज रिजर्व्स। पैस्टरलिस्ट को अलाउ एंट्री नहीं थी यहाँ पे इन रिजर्व्स में आने की। दे कुड नाइदर हंट एनिमल्स नॉट ग्रेज द हर्ड्स इन दीज एरियाज। ना वो हंट कर सकते थे वहाँ पे एनिमल्स को, और ना ही अपना मतलब हर्ड, अपने कोट, शीप्स, कैटल वगैरह लेके उस एरिया में जा सकते थे। वेरी ऑफन दीज रिजर्व्स वर इन एरियाज दैट हैड ट्रेडिशनली बीन रेगुलर ग्रेजिंग ग्राउंड्स फॉर मसाई हर्ड्स। मतलब बहुत ही कम रिजर्व्स थे ऐसे एरिया में जहाँ पे मतलब मसाई हर्ड्स को ग्रेजिंग करने के लिए मिलता था। द सेरेंगेटी नेशनल पार्क फॉर इंस्टेंस, जैसे यहाँ पे सेरेंगेटी नेशनल पार्क एग्जांपल दिया, वॉज क्रिएटेड ओवर 14,760 किलोमीटर ऑफ मसाई मतलब ग्रेजिंग लैंड। जो नेशनल पार्क था वो 14,760 किलोमीटर्स का, मतलब इतनी ज़्यादा किलोमीटर, मतलब इतनी ज़्यादा इधर यूज़ हुई थी। लेट मी टेक माई ब्लैक कलर। मसाई ग्रेजिंग लैंड। ओके, तो फिर नेक्स्ट क्या हुआ इसके बाद, तो ये तो सोर्स है, तो आप चाहे तो पढ़ सकते क्योंकि मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं इस पे, मतलब 2-3 मार्क के क्वेश्चंस रहते हैं सोर्सेस पे। The loss of the finest grazing land and water resources created pressure on the small area of land that the Masai were continued within। अभी क्या, जिनके पास देखो काम वगैरह नहीं था, काम धंधा नहीं था, तो उन्होंने क्या किया, तो वहाँ पे क्या हुआ, जो लॉस ऑफ फाइनेस्ट मतलब जो अच्छी उनकी ग्रेजिंग लैंड थी उसका लॉस हो रहा था क्योंकि उसको तो गेम रिजर्व में कन्वर्ट कर दिया था। तो फिर क्या हुआ, कंटिन्यूस ग्रेजिंग विद इन अ स्मॉल एरिया इनविटेबली मीट अ डिटोरेशन ऑफ द क्वालिटी ऑफ पेस्चर्स। अगर जैसे एक एरिया इधर मैं ग्रेज करूँ, फिर बाद में कुछ टाइम बाद इसको हार्वेस्ट कर दूँ, फिर से ग्रेज करूँ, फिर हार्वेस्ट कर दूँ, फिर ग्रेज करूँ, फिर हार्वेस्ट कर दूँ, तो इसकी वजह से क्या है, जो पेस्चर्स की जो क्वालिटी है इस एरिया में, जो क्वालिटी है पेस्चर्स की, क्वालिटी of pastures
वो डिटोरेट मतलब और कम होती जाएगी धीरे धीरे, मतलब इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं रहेगी जितनी स्टार्टिंग में थी, ठीक है। सो यहाँ पे फॉडर वॉज ऑलवेज इन शॉर्ट सप्लाई, मतलब फॉडर चारा जो रहता ना उसको सप्लाई के बहुत ज़्यादा कम रहती थी उसकी। फीडिंग द कैटल बिकेम अ परसिस्टेंट प्रॉब्लम, अभी कैटल को खाने खिलाना, क्योंकि उनके खुद के देखो चारा तो मिल नहीं रहा, फॉडर तो मिल नहीं रहा, और वैसे जितनों को मिल रहा है वो भी बहुत कम है, तो इससे कैटल को फीड करना एक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बन गई थी। अभी नेक्स्ट है बॉर्डर्स आर क्लोज्ड, अभी किस चीज़ के बॉर्डर्स क्लोज हुए, लेट्स सी। सो हियर इन द 19th century अफ्रीकन पेस्टलिस्ट कुड मूव ओवर वास्ट एरियाज इन सर्च ऑफ पास्चर्स। 19th century में जो अफ्रीकन पेस्टलिस्ट थे तो वो के बहुत बहुत दूर दूर तक जाते थे पास्चर्स की सर्च में। व्हेन द पास्चर्स वर एग्जॉस्टेड इन वन प्लेस दे मूव टू अ डिफरेंट एरिया टू ग्रेज द कैटल, मतलब अगर एक एरिया में पास्चर्स खत्म हो जाते तो दूसरे एरियाज जाते थे। जैसे इंडिया में होता था एक जगह ज़्यादा ओवर ग्रेस हो गए तो वहाँ के जो सारे पास्चर्स खत्म हो गए, फिर वो दूसरे इसमें जाते थे, फिर वापस उसी में आ जाते थे पहले वाले में, क्योंकि फिर रीग्रो भी हो जाते थे ना। तो ऐसे सेम अफ्रीका में होता था। फ्रॉम द लेट 19th century द कॉलोनियल गवर्नमेंट बिगेन इम्पोजिंग वेरियस रिस्ट्रिक्शंस, फिर 19th century से क्या हुआ, जो कॉलोनियल गवर्नमेंट जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स से उन्होंने क्या किया, रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए उनकी मोबिलिटी पे, मतलब उनकी मूवमेंट पे रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए बहुत सारे। So, like the Maasai, other pastoral groups were also forced to live within the confines of special reserve, मतलब जैसे मसाई जैसे मसाई थी तो ऐसे दूसरे और भी pastoral groups थे जिनको ये special reserves में नहीं आने दिया जाता था। The boundaries of these reserves became the limits within which they could now move। तो यहाँ बोला गया है मतलब जो इन रिजर्व्स की जो बाउंड्रीज थी तो इनके लिए लिमिट्स बन गई कि नहीं तुम इससे बाहर नहीं जा सकते यहाँ से। सो दे वर नॉट अलाउड टू मूव आउट विद देयर स्टॉक विदाउट स्पेशल परमिट्स, मतलब जब तक उनको परमिशन नहीं मिलती तब तक वो उस जगह से बाहर नहीं निकल सकते, मतलब उनको बाहर निकलना है तो उनको परमिशन चाहिए, और परमिशन ऐसा नहीं कि मिल ही जाएगी अगर आप मांगोगे तो, उसके लिए भी बहुत धक्के खाने पड़ते थे। एंड इट वॉज डिफिकल्ट टू गेट परमिट्स विदाउट ट्रबल एंड हेरेसमेंट, ये मैंने अभी बताया कि बिना हरेसमेंट के, बिना अगर आपको परेशान किए तो वहाँ पे परमिशन मिलती ही नहीं थी। दोज फाउंड गिल्टी ऑफ डिसओबिंग द रूल्स वर सेवरली पनिश्ड, जिनको अगर पता चल गया ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि इन्होंने रूल्स का डिसओबी किया है फिर तो उनको पक्का ही पनिशमेंट मिलती थी। देन नेक्स्ट है pastoralists were also not allowed to enter the markets in white areas, मतलब जो pastoralists थे वो white areas के market में नहीं जा सकते थे। In many regions they were prohibited from participating in any form of trade, मतलब वहाँ पे क्या है बहुत ज़्यादा ये था restriction था कि आप कोई भी trade में participate नहीं कर सकते, सिर्फ white trade है, मतलब जो white लोग हैं सिर्फ वही practice कर सकते, बाकी जो black लोग हैं या फिर और जो pastoralist उनको मना कर दिया गया था। White settlers and European colonists saw pastoralists as dangerous and savage people with whom all contact had to be minimized, मतलब इधर क्या हुआ, जो white settlers थे और जो यूरोप के जो रहने वाले लोग थे उनको लगता था कि pastoralist का एक डेंजरस एक खतरा है हमारे लिए, क्योंकि with people with whom all contact had to be minimized, इसलिए लोगों ने उनसे contact रखने के बहुत ही कम कर दिए। Cutting of all links was however never really possible, मतलब उनसे सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए कि इनसे बात ही नहीं करनी, इनसे दूर ही रहना है। Because white colonists had to depend on black labor to borrow mines and build roads and towns, क्यों रिश्ते नाते तोड़ी थी, क्योंकि जो white लोग थे, ठीक है, जो white colonists थे, white ब्रिटिश के लोग थे, तो वो किस पे डिपेंड थे, ब्लैक लोगों पे। क्यों, क्योंकि काम तो ब्लैक लोग करते थे और white लोग तो सिर्फ देखते थे, आराम करते थे, उनको मजाक उड़ाते थे, उनको हरास करते, उनको ट्रबल करते थे, और काम सारा लेबर का काम कौन करते थे, ब्लैक लोग, तो इसलिए वो ब्लैक लेबर पे डिपेंड थे। So what happened here? The new territorial boundaries and restrictions imposed on them suddenly changed the lives of pastoralists, मतलब जो नई टेरिटरी थी, जो केनिया और तंजानिया के बीच में जो नई टेरिटरी बाउंड्रीज जो थी उसके इस पे भी रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए, जिसकी वजह से pastoralist की लाइफ बहुत चेंज हो गई। This adversely affected both their pastoral and trading activities, इसकी वजह से दोनों pastoral और trading activities दोनों को बहुत ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ा।
और फिर earlier pastoralists not only looked after animal herders but trade in various products. मतलब जो pastoralists थे सिर्फ वो animal herds के बारे में नहीं देखते थे, वो और trade भी करते थे, agriculture products भी बेचते थे. So the restrictions under colonial rule did not entirely stop their trading. मतलब जो restrictions लगाए थे वो तो सिर्फ pastoralist पे लगाए थे, but वो लोग तो trade भी करते थे. मतलब उनका trade है वो चालू था, पूरी तरह से उनका business ठप नहीं हुआ था. एक्टिविटीज बट दे वर नाउ सब्जेक्ट टू वेरियस रिस्ट्रिक्शंस. अभी वो एक्टिविटीज तो कर सकते थे बट उन पे अभी भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस थे. ठीक है, अभी भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज हुए थे उन पे. The next day when pastures dry. अब pastures कब सूख जाता है वो पढ़ते हैं. सो यहाँ पे बात की गई है ड्रॉट अफेक्ट्स द लाइफ ऑफ पेस्टलिस्ट एवरीवेयर. ड्रॉट होता है, ड्रॉट मतलब सूखा. अगर कहीं भी सूखा पड़ जाए तो पेस्टलिस्ट की लाइफ तो बिल्कुल ख़राब ही हो जाती है. सो when rain fails and pastures are dry, cattle are likely to starve unless they can be moved to areas where forage is available. इसका मतलब अब जब रेन नहीं आती, जब कभी कभी बारिश नहीं आती तो पेस्चर्स क्या है सूख जाते हैं और कैटल्स फिर भूख से बिलबिलाते हैं क्योंकि पेस्चर्स के अलावा और तो कुछ वो खा नहीं सकते. तो मतलब फिर वहाँ पे फॉरेज और जो पेस्चर्स है वो अवेलेबल नहीं होते. सो दैट इज़ वाई ट्रेडिशनली पेस्टलिस्ट आर नोमैडिक, दे मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. इसलिए जो है जो ट्रेडिशनल मतलब जो पेस्टलिस्ट है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं. दिस नोमैडिज्म allows them to survive bad times and avoid मतलब इसकी वजह से जो मूव करते रहते हैं इसकी वजह से उनको मतलब उनको बैड टाइम्स में सर्वाइव भी कर सकते हैं एंड अवॉइड क्राइसिस, और क्राइसिस को भी अवॉइड कर सकते हैं. मतलब जो भी ड्रॉट है तो उसको वो अवॉइड कर सके और बैड टाइम्स में सर्वाइव कर सके. इसलिए वो क्या है एक जगह से एक एरिया से दूसरे एरिया घूमते हैं. सो आफ्टर दैट बट फ्रॉम द colonial period the Masais were bounded to a fixed area, confined within a reserve and prohibited from moving in search of pastures. मतलब यहाँ पे पर जब कॉलोनियल पीरियड है, मतलब जब ब्रिटिश ने राज किया, जो मसाई थे उन्होंने क्या किया एक फिक्स्ड एरिया में रहना शुरू किया. तो ब्रिटिश ने बोला था कि अगर तुम्हें रहना है तो एक फिक्स्ड एरिया में रहो, एक उसी जगह से ना बाहर निकलना, बस उसी के अंदर रहना है. ठीक है, तो उनके लिए एक रिजर्व बना दिया गया था कि वो पास्चर्स ढूंढने भी कहीं नहीं जा सकते, उनको इन एरिया में ही रहना पड़ेगा. They were cut off the best grazing lands and forced to live within a semi-arid tract prone to फ्रीक्वेंट ड्रॉट्स. तो मतलब उनके जो मतलब अच्छे जो ग्रेसिंग लैंड थी जहाँ पे अच्छे पास्चर्स मिलते थे उन सबको काट दिया और उनको क्या है उनको एक ऐसे एरिया में भेजते जहाँ पे सेमी एरिड एरिया, मतलब जहाँ पे थोड़ा डेजर्ट टाइप का सूखा एरिया जहाँ पे उनको पास्चर्स ना मिले, तो वैसी जगह उनको भेज दिया गया. सिंस दे कुड नॉट शिफ्ट द कैटल टू प्लेस वेयर पास्चर्स वर अवेलेबल, लार्ज नंबर्स ऑफ मसाई कैटल डाइड स्टार्वेशन एंड डिजीज इन दीज ईयर्स ऑफ ड्रॉट. अब यहाँ पे बताया कि अभी अगर मतलब उनको एक ही जगह रुकने मतलब एक ही जगह फिक्स कर दी थी उनके, वो मूव नहीं कर सकते थे, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट नहीं हो सकते थे. अभी एक जगह पास्चर्स अब सूखा एरिया तो पास्चर्स भी कम मिलेंगे, अब कम मिलेंगे तो जल्दी खत्म हो जाएंगे. इसकी वजह से फिर मतलब कैटल्स को खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा, तो धीरे धीरे जो कैटल्स है वो मरना शुरू हो जाएंगे, चाहे कोई डिजीज की वजह से या फिर ड्रॉट की वजह से. Then an inquiry in 1930 showed that the Maasai in Kenya possessed 7,20,000 cattle, 8,20,000 sheep, 1,71,000 donkeys. मतलब अगर एक इंक्वायरी की थी 1930 में तो उससे पता चला कि मसाई जो केन्या में थे उनके पास 7,20,000 कैटल, 8,20,000 sheep, 1,71,000 donkeys मर चुके थे. ठीक है, in just 2 years of severe drought, 1933 and 1934, over half of the cattle in the Maasai reserve died. तो यहाँ पे बताया गया कि सिर्फ एक साल का ड्रॉट था. कितने साल का? 1933 से 1944, बस इतने साल का, 1933 से 1934.
सो ये एक साल में, ठीक है, इनके बीच के बस एक साल में आधे से ज़्यादा जो मसाई रिजर्व था मतलब आधे से ज़्यादा मसाई कैटल्स जो थे वो मर चुके थे. देन as the area of as the area As the area of grazing lands shrank, the adverse effect of droughts increased in intensity. जैसे जैसे grazing land कम, grazing area जो है कम होता गया, वैसे वैसे जो drought का effect बढ़ता गया उन पे. The frequent bad years led to a steady decline of the animal stock of the pastoralists. इसकी वजह से जो pastoralist का stock है वो भी कम होने लगा. अब देखो pastures अगर कम होते जाएंगे तो animals भी उतने कम, जैसे pastures कम हो गए तो एनिमल्स भी क्या है वो भी उतने ही कम हो जाएंगे. The next is not all were equally affected. मतलब देखो अभी थोड़ा सा और बाकी है तो ये कवर कर लेते उतने में फिर हमारा फिनिश हो जाएगा. सो यहाँ पे बात की गई है नॉट ऑल वर इक्वली इफेक्टेड. अब सब सारे, ऐसा ज़रूरी नहीं कि सारे पेस्टिसाइड्स सबको ये फेस करना पड़ा. अभी देखते हैं किन किन लोगों ने फेस किया. In Masai land, as elsewhere in Africa, not all pastoralists were equally affected by the changes in the colonial period. मतलब सारे जो मसाई लैंड, मतलब जितने भी pastoralist अफ्रीका के सबको इक्वली इफेक्ट नहीं हुआ. कुछ ज़्यादा हुए इससे इफेक्ट, कुछ कम हुए. अभी in pre-colonial times, Masai society was divided into two social categories, that was elders and warriors. अभी मसाई कम्युनिटी किसमें दो कैटेगरीज में डिवाइड हुई थी. तो एक थी elders और दूसरा था warriors. So the elders form the ruling group and in periodic councils to decide on the affairs of the community. तो मतलब देखो जो एल्डर्स ग्रुप था, एल्डर्स के रूलिंग ग्रुप था, ये रूल करता था. इसमें क्या होती है, इनको मतलब ये एक कम्युनिटी बनाते थे, मतलब कम्युनिटी बनाते थे और डिस्प्यूट सेटल, मतलब कोई भी झगड़ा होता है तो उसको सेटल वगैरह करते थे. मतलब कोई भी इशू है उस पर डिस्कस करके उसको सॉल्व करने की कोशिश करते थे. अब नेक्स्ट है वॉरियर्स. द वॉरियर्स कंसिस्टेड ऑफ यंगर पीपल मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द ट्राइब. अभी वॉरियर्स में वो लोग आते थे जो यंगर थे, जो थोड़े जवान थे. तो वो लोग क्या करते थे, उनका क्या काम रहता था, ट्राइब्स हैं उनकी प्रोटेक्शन करना, उनको प्रोटेक्ट करना, आदिवासी की प्रोटेक्ट करना. They defend the community and organized cattle raids. मतलब उन्होंने जो ट्राइब्स हैं कम्युनिटी को बचाया, प्रोटेक्ट किया, डिफेंड किया और कैटल रेड्स भी ऑर्गेनाइज की, रेड मारी फिर उन्होंने. रेडिंग वाज इम्पोर्टेंट इन अ सोसाइटी वेयर कैटल वाज वेल्दी. अभी रेड मारना तो इम्पोर्टेंट बन गया था. जहाँ पे कैटल के बहुत अमीर हैं, ठीक है, तो वहाँ पे रेड मारना इम्पोर्टेंट बन गया था. It is through raids that the power of different pastoral groups was asserted. अब ये रेड की वजह से हुआ था, जितने भी pastoral groups हैं उनकी पावर ले ली गई थी. Young men became to be recognized as members of the warrior class when they proved their manliness by raiding the cattle of other pastoral groups and participating in wars. मतलब फिर यहाँ पे क्या हुआ था, ये बस ये रेड सी थी जिनकी वजह से इनकी पावर्स क्या ले ली गई थी. और फिर जो यंग मैन केम टू बी रिकॉग्नाइज, जो यंग मैन थे तो उनको सबको पता चल गया था कि वॉरियर क्लास के, क्योंकि उनकी कैटल क्या है, रेड, मतलब उनकी कैटल ले ली गई थी. आफ्टर दैट They, however, were subject to the authority of the elders. फिर उनको क्या, elders को जवाब देना पड़ा, क्योंकि warriors की तो ले ली थी कैटल्स वगैरह, तो इसलिए फिर elders की ही बाकी थी. Then, to administer the affairs of Masai, the British introduced a series of measures that had important implications. मतलब जब मसाई वगैरह, तब इनके जो इश्यूज थे जब ये आकर डिस्कस करते थे, तभी ब्रिटिश ने क्या है एक और मेजर लेके आए थे. वो मेजर क्या था, they appointed chiefs of different subgroups of Masai who were made responsible for the affairs of tribe. मतलब वहाँ पे फिर उन्होंने क्या किया कि चीफ भी अपॉइंट करने लगे.
ठीक है, उतने विलेज का एक चीफ, दूसरे विलेज का दूसरा चीफ। तो अब वो चीफ को देखना था कि ट्राइब्स के क्या क्या प्रॉब्लम्स है, क्या क्या इश्यूज रेज हो रहे हैं। द ब्रिटिश imposed various restrictions on रेडिंग एंड वॉरफेयर। मतलब जो ब्रिटिश थे उन्होंने बहुत सारे अलग अलग रिस्ट्रिक्शंस उन पर लगाए, रेडिंग के, वॉरफेयर के, ठीक है, इन सब के रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए। कॉन्सिक्वेंटली द ट्रेडिशनल अथॉरिटी ऑफ बोथ एल्डर्स एंड वॉरियर्स वर एडवर्सली अफेक्टेड। मतलब जो ट्रेडिशनल अथॉरिटी एल्डर्स की और वॉरियर्स की, दोनों को ही इफेक्ट पड़ा इससे बहुत। देन नेक्स्ट है द चीफ अपॉइंटेड बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट ऑफन एक्यूमुलेटेड वेल्थ ओवर टाइम। मतलब उनको उसके बाद वेल्थ मिलती गई, उनके बाद उनको पैसे मिलते गए। अब चीफ उधर मतलब देख रहा है, ठीक है, चीफ को अपॉइंट किया गया है, वो सब देख रहे कि सब काम हो रहा है कि नहीं अच्छे से, तो उसको पैसे मिलते गए उस काम के। अब फ्री में तो थोड़ा करेगा। दे हैड अ रेगुलर इनकम विद विच दे कुड बाय एनिमल्स, गुड्स एंड लैंड। मतलब उनको फिर रोज़ की इनकम मिलती थी जिससे अपने एनिमल्स, लैंड वगैरह खरीदते थे। देन दे लैंड मनी टू पुअर नेबर्स हु नीडेड कैश टू पे टैक्सेस। मतलब वो अपने पुअर नेबर्स हैं उनको भी पैसे देते थे ताकि वो अपने टैक्सेस भर सकें। Many of them began living in towns and became involved in trade। बहुत सारे लोग क्या टाउन शिफ्ट हो गए, टाउन्स चले गए, गाँव से शहर चले गए ताकि वहाँ पे कोई ट्रेड कर सके, कोई व्यापार कर सके। Their wives and children stayed back in the villages to look after the animals। पर उनके जो बीवी बच्चे थे, जो वाइफ वगैरह थी, चिल्ड्रंस थे, तो वो सब विलेजेस में थे ताकि वो एनिमल्स की देखभाल कर सके। The chief managed to survive the devastation of war and drought। जो चीफ थे मतलब चीफ को मैनेज करना था कि यहाँ पे कोई वॉर ना हो, कोई ड्रॉट, सूखा वगैरह ना पड़े। सो दे हैड बोथ पेस्टरल एंड नॉन पेस्टरल इनकम। उनकी पेस्टरल की भी इनकम रहती है और नॉन पेस्टरल दोनों की इनकम रहती है। कुड बाय एनिमल्स वेयर देयर स्टॉक वाज डिप्लीटेड। तो जब उनका स्टॉक खत्म हो जाता तो तब वो वहाँ पे एनिमल्स भी खरीद सकते थे। देन but the life history of the poor pastoralists who depend only on their livestock was different। मतलब जैसे poor pastoralists की जो भी अभी तक हिस्ट्री चलती आ रही वही चलती थी, जो वो मतलब लाइवस्टॉक पे डिपेंड हो गए। मोस्ट ऑफन दे डिड नॉट हैव द रिसोर्सेज टू टाइड ओवर बैड टाइम्स। कुछ लोगों के पास तो रिसोर्सेज ही नहीं थे कि उनके बैड मतलब उनके बुरे समय में उनका साथ दे पाए। In times of wars and famine, they lost nearly everything। जब भी कोई वॉर होती थी या जब भी कोई famine, कोई सूखा पड़ता था कहीं, तो वहाँ पे क्या है, सब कुछ खो देते थे, lost everything। They had to go looking for work in towns। उनको towns वगैरह में जाना पड़ता था कोई काम देखने के लिए। Some asked out a living as a charcoal burners, other did odd jobs। कुछ लोगों ने तो charcoal burners की जॉब करना शुरू कर दिया और कुछ लोग तो अलग ही जॉब करने लगे। The lucky could get more regular work in roads or building construction। कुछ लकी लोग थे जिनको मतलब रोड पे काम करने का, बिल्डिंग बनाने का काम मिल गया था। So after that the social changes in Masai society occurred at 2 levels। अब जो changes हुए तो दो लेवल में occur हुए। एक मिनट, वो दो चेंजेस कौन से थे? फर्स्ट, द ट्रेडिशनल डिफरेंसेस बेस्ड ऑन एज बिटवीन द एल्डर्स एंड वॉरियर्स वाज डिस्ट्रीब्यूटेड। जो इनके बीच में डिफरेंस क्या था उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दी कि थ्रू इट डिड नॉट ब्रेक डाउन एंटायरली। पूरी तरह से उनका ये नहीं टूटा दोनों के बीच में। सेकेंड, अ न्यू डिस्टिंक्शन बिटवीन द वेल्दी एंड पुअर पेस्टलिस्ट वाज डेवलप्ड। मतलब पुअर और रिच के बीच में और डिफरेंशिएट होने लगा। डिफरेंशिएट समझ जाना, स्पेलिंग वो तो आती है, वैसे भी डिफरेंशिएट होने लगा। देन कंक्लूजन। अभी चैप्टर फिनिश, कोई भी अगर हिस्ट्री में चैप्टर फिनिश होता है तो उसकी पहले कंक्लूजन पढ़ते हैं। अब इस चैप्टर से हमारी कंक्लूजन क्या निकली? दैट so we see that pastoral community in different parts of world are affected in a variety of different ways by changes in the modern world। मतलब सारी कम्युनिटी, बहुत सारी कम्युनिटी पड़ी जिन पे जो फॉरेस्ट लॉज या एक्ट रूल्स वगैरह जो ब्रिटिश ने लागू किए थे, उनका क्या क्या चेंजेस पड़ा।
changes, new laws and new borders affect the patterns of the movement. जो नए नए laws बने, नए नए borders बने जो उनके movement को affect किए. With increasing restrictions on their mobility, pastoralists find it difficult to move. Pastoralists find it difficult to move in search of pastures. मतलब pastoralist को ऐसे थोड़ा difficult लगा कि pasture ढूंढने में. As pasture land disappear, grazing become a problem. जैसे जैसे pastures गायब होते गए तो grazing क्या है, एक problem बनने लगी. While pastures that remain deteriorate through continuous overgrazing, और जो pasture बचे थे तो उन पे overgraze होने लगी. Then times of drought become time of crisis when cattle die in large numbers. अब जो सूखे का टाइम था तो वहाँ पे क्राइसिस आने लगे, सब भूख से मरने लगे लोग. अभी और कैटल भी भूख से क्या थे, मर गए थे बहुत सारे कैटल. Then yet pastoralists to adapt at new times. अब नए नए टाइम से pastoralists ने भी adapt कर लिया. They change their paths of their annual movement. उन्होंने उनकी जो movement थी पूरे साल की उन्होंने वो change की. Reduce the cattle numbers, cattle reduce कर दिए. Press for right to enter new areas. नए नए मतलब उनको दूसरे areas में घुसने के right भी उन्होंने लिए. Exert political pressure दिए government पे ताकि उनको सब्सिडी दे या फिर सपोर्ट करें या मतलब दूसरे फॉरेस्ट में घुसने दें. और वाटर रिसोर्सेज के लिए भी. पैस्टलिस्ट आर नॉट रिलिक्स ऑफ द पास्ट. मतलब पैस्टलिस्ट सिर्फ पास्ट में ही नहीं थे. दे आर नॉट पीपल हु हैव नो प्लेस इन द मॉडर्न वर्ल्ड. वो ऐसे लोग नहीं थे जिनकी कोई जगह नहीं है मॉडर्न वर्ल्ड पे, बल्कि वो आज भी एग्जिस्ट करते हैं. आज भी मॉडर्न वर्ल्ड है, आज भी तो कितने सारे कम्युनिटीज़ हमें देखने को मिलते हैं. अभी कहीं कभी कभी अपने घर के पास भी आते हैं कैमल वगैरह को लेके. वो क्या रहता है, जो ग्रुप्स में आते हैं इतने सारे लोग, कैमल्स, गोट, शिप्स वगैरह. या फिर हम लोगों ने कितनी बार राजस्थान वगैरह महाराष्ट्र में देखी भी ऐसी कम्युनिटीज. तो यहाँ पे क्या ज्यादा देखने के लिए मिलती हैं ये कम्युनिटीज वगैरह. तो वहाँ पे क्या है, अभी भी तो मॉडर्न वर्ल्ड में हमें दिखाई दे रहे हैं, बट अभी पहले से एज कम्पेयर टू द एंशिएंट टाइम्स अभी रिड्यूस हो गई हैं ये कम्युनिटीज़. क्या है, बहुत मतलब थोड़ी कम देखने के लिए मिलती हैं. एनवायरमेंटलिस्ट एंड इकोनॉमिक जस्ट अ मिनट. Environmentalists and economists have increasingly come to recognize that pastoral nomadism is a form of life that is perfectly suited to many hills and dry regions of world. तो यहाँ पता क्या है, environmentalist और economist जो दोनों हैं उन्होंने मतलब pastoral nomadism एक लाइफ है जो इंट्रोड्यूस की है. बहुत सारे मतलब कुछ लोग अभी हिली एरियाज में रहते हैं, कुछ लोग अभी भी सूखे एरिया में ही रहते हैं वर्ल्ड के. तो ये कंक्लूजन था इंडिया और अफ्रीका के बारे में. इंडिया और अफ्रीका दोनों में, इंडिया के मैंने पार्ट 1 बता दिया था और अफ्रीका का दिस वाज द पार्ट 2 विच आई हैव टोल्ड यू अबाउट pastoralism in Africa. So here we have completed this chapter. So if you like this video, so please like, share and subscribe my channel. And if you like this video, so please comment also. So bye guys, I will meet you again in the next part or next chapter of history. Bye guys, take care.